بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دوستی کا پھل۔ شفیع عقیل کی لکھی ہوئی یہ لوک داستان دوستی کا پھل۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس سبق میں کل کتنے کردار ہیں۔ نمبر 1، ایک کبوتر اور کبوتری، مطلب کبوتروں کا ایک جوڑا ہے۔ نمبر 2، گدوں کا ایک جوڑا ہے۔ نمبر 3، ایک سانپ ہے۔ اور نمبر 4، ایک شکاری ہے۔ کسی جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری رہتے تھے۔ ایک بڑے سے درخت پر ان کا گھونسلہ تھا اور دونوں امن چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب کبوتری نے گھونسلے میں انڈے دیے تو اسے اس بات کی فکر رہنے لگی کہ کوئی جانور انڈے نہ لے جائے۔ ایک دن اس نے کبوتر سے کہا کہ یہاں ہمارا کوئی سنگی ساتھی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے جو وقت پڑنے پر ہمارے کام آ سکے۔ کبوتر نے کہا کہ تمہیں یہاں خطرہ کس بات کا ہے؟ کبوتری نے کہا کہ برا وقت کسی کو بتا کر نہیں آیا کرتا، ہمیں ایک دو اپنے ساتھی ضرور بنا لینے چاہیے، دوست ضرور بنا لینے چاہیے تاکہ مصیبت میں وہ ہماری مدد کر سکیں۔ یہ بات سن کر کبوتر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا دراصل مسئلہ یہ ہے، یہاں ہماری برادری کا کوئی پرندہ بھی تو نہیں رہتا، تو پھر ہم دوست بنائیں تو کسے بنائیں؟ کبوتری بولی کہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہماری برادری کا کوئی پرندہ نہیں ہے تو نہ ہو، آخر کسی دوسری برادری کے پرندے یا جانور سے بھی تو دوستی کی جا سکتی ہے، ان سے بھی تعلق بنایا جا سکتا ہے۔ کبوتر نے کہا کہ قریب ہی ایک درخت پر گدوں کا ایک جوڑا رہتا ہے، اگر تم کہو تو میں ان کے پاس جاؤں۔ گدھ جو ہے یہ بڑے بڑے پروں والے، لمبی سی گردن والے پرندے ہوتے ہیں، بے ڈھنگے سے، اور مردار کھاتے ہیں۔ مردہ جانور جہاں آپ کو نظر آئیں گے ان کے اوپر منڈلاتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں، مردہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ کبوتری نے کہا کہ اس میں سوچنے والی کیا بات ہے، ابھی جاؤ اور ان سے دوستی قائم کرو۔ کبوتر نے کہا مجھے تو گدوں سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں وہ ہم سے دوستی کریں یا نہ۔ کبوتری نے کہا گدھ ہیں تو کیا، ہیں تو پرندے ہی، تم جا کر تو دیکھو۔ کبوتر اسی وقت اڑ کے گدوں کے جوڑے کے پاس جا پہنچتا ہے، وہاں جا کر سلام دعا کرتا ہے اور پھر بڑی اپنائیت سے کہتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، اس طرح ہمارا رشتہ سگوں جیسا ہے، پھر کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن جائیں۔ کبوتر کی بات سن کر گدھ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، ہمسائے تو ماں جائے ہوتے ہیں، آپس کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ کبوتر نے کہا اسی لیے میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ آج سے ہم دوست بن جائیں۔ گدھ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم تو آج سے ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں، مگر ایک بات میری اگر مانو تو ہم ایک اور کام بھی کریں۔ کبوتر نے پوچھا وہ کیا؟ گدھ نے بتایا کہ ساتھ ہی یہاں پر ایک درخت کی کھو میں ایک سانپ رہتا ہے، اگر وہ بھی ہمارا دوست بن جائے تو پھر ہم خطرے سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ گدھ کی یہ بات کبوتر کو بھی پسند آئی، لہٰذا وہ بولا اگر یہ بات ہے تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارا دوست بن جائے۔ گدھ اور کبوتر دونوں سانپ کے پاس گئے، سانپ کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم تینوں مختلف برادری سے تعلق رکھتے ہیں، مگر دوست بننے میں کیا حرج ہے۔ سانپ نے ان دونوں کی باتوں کو بڑے غور سے سنا، کچھ دیر لیٹا ان پر سوچ بچار کرتا رہا اور پھر ان سے کہنے لگا دوستی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنا پڑتی ہے۔ کبوتر اور گدھ نے کہا تم ہمیں ہر امتحان میں ثابت قدم پاؤ گے۔ سانپ کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو مجھے تم دونوں کی دوستی منظور ہے، آج سے پھر ہم تینوں دوست ہیں، وقت پڑنے پر ایک دوسرے کی پوری مدد کریں گے، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس طرح کبوتر، گدھ اور سانپ کی دوستی ہو گئی۔ اب کبوتری بھی مطمئن تھی کیا وہ اکیلے نہیں رہے، ان کے دوسرے دوست بھی ہیں۔ گزرتے گئے، کبوتری نے جو انڈے دیے تھے ان میں سے بچے نکل آئے۔ کبوتر اور کبوتری دن رات بچوں کی دیکھ بھال میں لگے رہتے۔ ایک روز ایک شکاری اس طرف آ نکلا، وہ صبح سے مارا مارا پھر رہا تھا لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا جس پر کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا خالی ہاتھ گھر جانا اچھی بات نہ ہوگی، کیوں نہ کسی گھونسلے سے کسی جانور کے بچے ہی پکڑ کر لے چلوں، کچھ تو مل جائے گا۔ اتنا سوچ کر اس نے ارد گرد سے درخت کا جائزہ لیا
तो उसे उस पर एक घोंसला दिखाई दिया। घोंसला देखकर उसने अपने तजर्बे से इसका अंदाज़ा भी कर लिया कि घोंसले में किसी परिंदे के बच्चे भी मौजूद हैं। उस वक्त शाम होने को आई थी और आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। ये देखकर शिकारी के जहन में एक तरकीब आई। उसने सोचा, अगर मैं दरख्त के नीचे आग जला दूं तो रोशनी में दरख्त पर घोंसला तलाश करने में आसानी रहेगी। उसने इधर उधर से चंद सूखी लकड़ियां और घास फूस जमा की और फिर उनमें आग लगाकर अलाव सा रोशन कर दिया। इसके बाद वो दरख्त पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। इधर दरख्त के नीचे शिकारी ये तैयारी कर रहा था और उधर दरख्त पर बैठे कबूतर और कबूतरी ये सब कुछ देख रहे थे। वो शिकारी की नीयत भांप गए थे और अब वो अपने बच्चों को बचाने की तरकीबें सोच रहे थे, जो भी इतने छोटे थे कि उड़ भी न सकते थे। कबूतर कबूतरी से कहने लगा, मैं अभी अपने दोस्तों को खबर करता हूं और उन्हें जल्द बुला कर लाता हूं। जिस पर कबूतरी कहने लगी, ये दुरुस्त है, तुम अपने दोस्तों को बुला लाओगे और ये भी ठीक है कि वो हमारी मदद को भी आ जाएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि पहले हम खुद कोशिश करें। हो सकता है दूसरों की मदद के बगैर ही ये मुसीबत टल जाए। कबूतर ने कहा, मेरा तो ख्याल है पहले अपने दोस्तों को खबर कर ही देनी चाहिए। इस पर कबूतरी ने कहा, अगर कोई अपनी मदद आप ना करे तो दूसरे भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ करते। हाँ, अगर हम इसका मुकाबला करने में नाकाम हो जाएं तो फिर तुम अपने दोस्तों को ज़रूर बुला लाना। पहले हमें खुद कुछ करना चाहिए। शिकारी आग जला चुका था और अब वो उसकी रोशनी में दरख्त पर चढ़ना भी शुरू हो चुका था। कबूतरी ने कहा कि अगर हम आग बुझा दें तो शिकारी अंधेरे में हमारा घोंसला नहीं ढूंढ सकेगा। कबूतर ने कहा, मगर हम आग कैसे बुझा सकते हैं? कबूतरी ने कहा, आओ तो सही, हम कोशिश करते हैं। कहकर दोनों बिजली की तेजी से उड़ गए। करीब ही दरिया बह रहा था। दोनों ने दरिया पर पहुंचकर अपने परों में पानी भरा और फिर देखते ही देखते वापस आकर वो पानी जलती हुई आग पर छिड़क दिया। वो फिर उड़े और दोबारा पानी लाकर आग पर छिड़का और इस तरह चंद ही लम्हों में 3-4 बार पानी लाकर उन्होंने छिड़क दिया, जिससे जलती हुई आग बुझ गई। दरख्त पर चढ़ते हुए शिकारी ने जब देखा कि आग बुझ गई है और अंधेरे में घोंसला तलाश करना मुश्किल है, नीचे उतरकर उसने दोबारा आग जलाई और फिर से दरख्त पर चढ़ने लगा। कबूतर और कबूतरी तो मुतमिन हो चुके थे कि आग बुझ गई है और अंधेरे में अब शिकारी दरख्त पर नहीं चढ़ सकता। उधर कबूतर और कबूतरी ने जब देखा कि आग दोबारा रोशन हो गई है तो वो फिर से भागे भागे दरिया पर गए और पहले की तरह परों पर पानी भर भर कर लाकर उस पर छिड़कने लगे और इस तरह चंद ही लम्हों में उन्होंने फिर से आग बुझा दी। शिकारी एक बार फिर दरख्त पर चढ़ते चढ़ते रुक गया। कुछ अंधेरा भी बढ़ चुका था और रोशनी के बगैर दरख्त पर चढ़ना भी मुमकिन नहीं था और उसे आग पर भी रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि ये अपने आप कैसे बुझ जाती है। वो गुस्से में खौलता हुआ फिर दरख्त से नीचे उतरा और एक बार फिर इधर उधर से लकड़ियां जमा कर कर उनमें आग लगा दी। इस दफ़ा उसने मोटी मोटी लकड़ियां जमा की थीं ताकि जलने के बाद आग ना बुझ सके। कबूतर और कबूतरी ने जब ये देखा कि इस दफ़ा आग बुझाना अब उनके बस की बात नहीं तो वो बहुत घबराए। कबूतरी ने कहा कि अब दोस्तों की मदद बहुत ज़रूरी है, जल्दी जाओ और अपने दोस्त गिद्ध को मदद के लिए बुला लाओ। ये सुनते ही कबूतर फौरन गिद्ध के जोड़े के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताकर कहा, अब मुझे तुम लोगों की मदद की ज़रूरत है। गिद्ध ने आओ देखा ना ताओ सारे काम छोड़कर कहा, चलो हम अभी चलते हैं, दोस्ती किस रोज़ काम आएगी। कबूतर गिद्धों के जोड़े को साथ लेकर आया तो उन्होंने देखा कि आग पूरी तरह जल रही थी और उसकी रोशनी में शिकारी दरख्त पर चढ़ रहा था। दोनों गिद्ध कबूतर और कबूतरी के साथ जल्दी जल्दी दरिया पर गए और उन्होंने अपने बड़े बड़े परों पर पानी भरकर लाकर आग पर फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह देखते ही देखते चंद लम्हों में जलती हुई आग बुझ गई। ये देखकर शिकारी तिलमिला कर रह गया। मुसीबत ये थी कि अब अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। ये भी था कि शिकारी बार बार दरख्त पर चढ़ने उतरने में थक चुका था, इसलिए उसने दिल में सोचा, आग जलाना मुश्किल है, रात बहुत हो गई है, क्यों ना रात यहीं बसर कर लूं, सुबह आसानी से बच्चे निकाल कर ले चलूंगा। ये सोचकर वो दरख्त से थोड़ी दूर ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर लेट गया। कबूतर और गिद्ध ने जब ये देखा
کہ शिकारी वहीं पर रात बसर करने का इरादा रखता है और सोने की तैयारी करने लगा तो वो जान गए कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। सुबह ज़रूर घोंसले में से बच्चे निकाल कर ले जाएगा। ये जानकर वो कुछ दूसरी तरकीबें सोचने लगे। कबूतरी ने राय दी कि मेरी मानो तो तुम दोनों अपने दोस्त सांप के पास जाओ, इस वक्त वही हमारी मदद कर सकता है। कबूतर और गेंद दोनों थोड़ी ही देर में अपने दोस्त सांप के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शुरू से आखिर तक उसे सारी बात बताई और कहा, इस वक्त शिकारी वहीं सोया हुआ है और हमें डर है कि वह सुबह ज़रूर बच्चे निकाल कर ले जाएगा। अब सिर्फ तुम्हारी मदद ही मेरे बच्चों की ज़िंदगी बचा सकती है, इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। सांप ने बड़े गौर से उनकी बातें सुनी और कहा, तुम लोग घबराओ नहीं, इस वक्त तुम दोनों जाओ, मैं सुबह सारा बंदोबस्त कर लूँगा। ये बात सुनकर गेंद और कबूतर दोनों वापस घोंसले में आ गए। उन्हें यकीन था कि सांप ने हमें मदद करने का यकीन दिलाया है, वो ज़रूर अपनी दोस्ती निभाएगा। शिकारी रात भर मज़े से सोया और जब सुबह हुई तो खुश खुश आंखें मलता हुआ उठा। दरख्त पर चढ़कर घोंसले में से बच्चे निकाले और अपने घर की राह ले। उसने उठकर अपना सामान वगैरह समेटा और जूं ही दरख्त पर चढ़ने के लिए उसके पास गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपना होशो हवास ही खो बैठा। उसके तीर कमान कहीं थे और अब वो अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहा था। उसने देखा कि जिस दरख्त पर चढ़कर उसे कबूतर के घोंसले से बच्चे निकालना थे, उस दरख्त के तने के इर्द गिर्द बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ है और उसे देख देख कर फुंकार रहा था। शिकारी ने दिल में सोचा, जिस तरह भी हो अपनी जान बचाओ, भाड़ में जाए शिकार। वो अपना सारा सामान छोड़ छाड़ कर उल्टे पांव ऐसा भागा कि फिर पलट कर कभी ना आया। वो दिन और आज का दिन उस शिकारी का कहीं पता न चल सका, लेकिन कबूतर आज भी सुख चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ये सब कुछ उनकी दोस्ती का नतीजा है। यही वजह है कि आज भी लोग दोस्ती और अमन के पैगाम के लिए कबूतर ही इस्तेमाल करते हैं। शफ़ी अकील मारूफ सहाफ़ी, सफ़रनामा निगार, अदीब और शायर। शफ़ी अकील की वजह शोहरत लोक दास्तानों की तहकीक व तदवीन है। आप रोज़नामा जंग से भी वाबस्ता हुए। आपने अखबार जहां के एडिटर की हैसियत से भी काम किया। शफ़ी अकील मज़ाहिया कालम निगारी के साथ साथ शायरी में भी पुख्तगी रखते हैं। इसके अलावा आप सफ़रनामे भी तहरीर कर चुके हैं। उनका अदबी मैदान में बेहतरीन शोबा लोक दास्तानों के तराजिम हैं। उनके पंजाबी, चीनी, जापानी और ईरानी लोक कहानियों के तराजम मंजर आम पर आ चुके हैं। लोक दास्तान कहते हैं सीना बसीना चलने वाली कहानी को। आम तौर पर ऐसी कहानियों के कोई मुसन्निफ नहीं होते। उनकी अदबी खिदमात के सिले में तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया। दोस्ती का फल उनकी किताब पंजाबी की लोक दास्तानें उससे अखज़ किया गया है।